Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing Unit 4 of Inclusive Education, that is National Initiatives, and we had discussed certain topics of it. And today we are going to discuss about National Curriculum Framework 2005, and this will be our last episode of Inclusive Education. Alright then, let's start. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. So let's start with a brief introduction. जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसको डेवलप किया by NCERT in the year 2005 and it became one of the most important policy documents in Indian education. And इसको basically introduce किया गया in order to reform the nature of teaching and learning in schools. And ये जो framework है it strongly criticize lot learning and it suggest constructivist approach जहाँ learners जो है they actively construct knowledge through experience, interaction and reflection. And in the context of inclusive education, the national curriculum framework है it marked a major shift. Like instead of expecting children, especially those with disabilities, to adjust to a rigid school system, it focuses on changing the school system that will suit the needs of every child. ठीक है. First of all, talking about it is 5 guiding principles. जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है it is based on the 5 guiding principles जो कि एम करता है to reduce stress, make learning more meaningful and promotion of inclusion. And ये जो principles है these principles are first जो है that is connecting knowledge to life outside school. जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है it suggests that कि जो learning है that should be related to real life situations, children's experiences, social and cultural context, जो कि हेल्प करेगी सभी लर्नर्स को इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स मोर इजीली. ठीक है. सेकंड जो है दैट इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रॉट लर्निंग. एज आई मेंशन्ड कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इट स्ट्रांगली डिस्करेज मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग. रादर इट प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. एंड ये जो अप्रोच है ये हमें बहुत ही हेल्पफुल देखने को मिला फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज एज वेल हु स्ट्रगल विथ रॉट मेमोरी. थर्ड जो है दैट इज एनरिचिंग द करिकुलम. जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इट ऑल्सो सजेस्ट दैट कि जो एजुकेशन है हमारी दैट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली अप टू टेक्स्ट बुक्स but rather that should be also extended up to projects, activities, art, music, drama and plays. And according to it, ये जो methods है these methods will allow children with different disabilities to express themselves in diverse ways. ठीक है. Fourth जो है that is making examinations more flexible. जो NCF 2005 है it heavily focuses on reducing exam stress, integrating assessment with classroom activities, as well as also on using multiple forms of evaluation. And ये जो flexibility है this ultimately benefit children with special needs who may not perform well in traditional written exams. ठीक है. 5 जो है that is nurturing an overriding identity. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है हमारी दैट शुड प्रमोट डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एज वेल एज रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी. और जो स्कूल्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो हेल्प करे चिल्ड्रंस को इन अप्रिशिएटिंग डिफरेंसेस रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, जेंडर, कास्ट एंड कल्चर. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ सेकंड टॉकिंग अबाउट द National Curriculum Framework and Inclusive Education. As I mentioned कि जो National Curriculum Framework है it gives special importance to inclusive classrooms, which states that कि जो
स्कूल की क्वालिटी है उसको जज किया जाएगा, हाउ वेल इट सपोर्ट्स इट इज मोस्ट डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स और स्पेशल चिल्ड्रंस। एंड ये जो इम्पोर्टेंस है इंक्लूसिव क्लासरूम्स की, इसमें सर्टन पॉइंट्स जो है उनको कंसिडर किया गया, लाइक डाइवर्सिटी एज अ रिसोर्स। लाइक जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इट व्यूज डाइवर्सिटी एज अ स्ट्रेंथ रादर देन इज ए प्रॉब्लम। एंड जो डिसेबिलिटी, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस एंड सोशल बैकग्राउंड जो है इन आस्पेक्ट्स को देखा गया एज ए नेचुरल आस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। एंड बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है उनको ऑल्सो यूज़ किया गया फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज सच एज विजुअल एड्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क, बेनिफिट ऑल स्टूडेंट्स रादर देन ओनली स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। सेकेंड जो है दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी। ये जो फ्रेमवर्क है दिस फ्रेमवर्क आल्सो सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द लर्निंग। एंड ये हमें आल्सो एसेंशियल देखने को मिलता है फॉर द इंक्लूजन, बिकॉज यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं दे एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्पीकिंग, ड्राइंग, एक्टिंग, राइटिंग। एंड हियर जो पीयर लर्निंग है, ग्रुप लर्निंग है, उसको आल्सो एनकरेज किया गया, दैट आल्सो हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। एंड जो चिल्ड्रंस थे विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ वो एक साथ मिल के काम करके प्रमोट करते थे कोऑपरेशन एंड एम्पैथी को। ठीक है, थर्ड जो है दैट इज करिकुलम एडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो NCF है इट आल्सो सजेस्टेड दैट कि जो हमारा करिकुलम है दैट मस्ट बी आल्सो फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू लर्नर्स नीड्स। एंड इसमें आल्सो की एडेप्टेशंस जो है उनको एडेप्ट किया गया, इंक्लूडिंग एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स, लाइक ब्रेल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किए गए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, या लार्ज प्रिंट या ऑडियो फॉर्मेट सो दैट दे कैन ईजिली एक्सेस टेक्स्ट बुक्स। एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए फॉर देम, स्पेशली फॉर टास्क्स एंड एग्जाम्स। एंड रिकॉग्निशन जो है साइन लैंग्वेज की उसको ऑल्सो कंसिडर किया गया एज ए वैलिड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड जो कंटेंट एडजस्टमेंट है उस पर ऑल्सो फोकस किया गया विदाउट लॉवरिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, now third talking about the key classroom level recommendations. There are various key classroom level recommendations under national curriculum framework which include first that is the role of teacher. Under curriculum framework जो टीचर का रोल है दैट शिफ्ट्स फ्रॉम अथॉरिटी टूवर्ड्स द फैसिलिटेटर, एंड इट मेक श्योर दैट कि जो टीचर्स हैं दे मस्ट रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दे मस्ट एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, एंड दे मस्ट बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द इमोशनल एंड लर्निंग नीड्स ऑफ द ईच चाइल्ड। ठीक है, सेकेंड जो है दैट इज फिजिकल एंड सेंसरी एनवायरनमेंट। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इट ऑल्सो सजेस्ट्स दैट कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर की, विच इंक्लूड रैम्प्स, एक्सेसिबल classrooms as well as proper lighting and noise reduction, and also the comfortable seating and movement space. So national curriculum framework के अकॉर्डिंग ये जो एडजस्टमेंट्स हैं these adjustments will ultimately help children with physical, sensory and attention related difficulties. ठीक है, थर्ड जो है that is evaluation and assessment. NCF 2005 जो है it also recommends continuous and comprehensive evaluation, that is through assessments throughout the year as well as through focusing on progress, effort and participation, and also through the use of portfolios, observations and activities. And according to it ये जो continuous and comprehensive evaluation है this ultimately allow children with intellectual or learning disabilities to be accessed fairly. ठीक है, फोर्थ जो है that is removing labels. जो NCF है it strongly discourage labeling children as slow learners, backward or problem children. And ये जो labels हैं these labels basically lower teacher expectation that harm the self-esteem of the children and that also create social stigma. So instead इसमें जो चिल्ड्रंस थे उनको देखा गया as unique learners with
यूनिक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स। ठीक है। नाउ फॉर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जो सिग्निफिकेंस है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, वो हमें बहुत ही यूज देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ लाइक फर्स्ट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जो NCF 2005 है, इट प्लेस चाइल्ड एट ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, मीन्स इट इज़ ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन द इमोशनल वेलबींग, सेल्फ एस्टीम, जॉय ऑफ लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड जो है दैट इज़ फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव लॉज। ये जो फ्रेमवर्क है, दिस फ्रेमवर्क आल्सो प्रोवाइड द पेडागोगिकल बेस फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 as well as also for other inclusive education policies especially under सर्व शिक्षा अभियान एंड समग्र शिक्षा। ठीक है। थर्ड जो है दैट इज ग्लोबल अलाइनमेंट। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इट also align Indian education with international principles such as Salman Shah statement and school for all philosophy। ठीक है। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। Now at conclusion we had learned that कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, it completely transformed Indian education, that is through different strategies like child-centered, inclusive and flexible learning, and it shifted the focus from can the child fit the system towards can the system respond to the child's needs। So ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस डाइवर्सिटी एज ए स्ट्रेंथ एंड विच हैवीली फोकसेस ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और पेडागोगी, एंड इट अल्टीमेटली लेज द फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, विच मेक श्योर दैट हर एक चाइल्ड जो है ही कैन लर्न विद डिग्निटी, पार्टिसिपेशन, रेस्पेक्ट। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई विदाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.